Today we are going to do Accounting Standard 1 Disclosure of Accounting Policies, right? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे and in a very interesting way, so it will be just fun studying and also reviewing all the points nicely. Welcome to my channel CA Gayatri's Academy. So the topic is Accounting Standard 1 Disclosure of Accounting Policies. Let's begin. Accounting Standard, as we know, it has been set by Institute of Chartered Accountants of India ICAI, is titled as Disclosure of Accounting Policies. ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसी पॉलिसी को हमें डिस्क्लोज करने हैं. ठीक है, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो सिर्फ हमें डिस्क्लोज करने हैं कि जो हम फॉलो करें, प्लस अगर हम कोई चेंज किए हैं पॉलिसी को तो उसको भी यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं. राइट. It provides guidelines on the disclosure of significant accounting policies elaborated in the preparation and presentation of financial statements. The standard aim is to ensure that the users of financial statements understand the basis on which they are prepared and can make meaningful comparisons with the financial statements of other entities. मतलब क्या है, जो accounting policies हमने follow किए हैं हमारे business में, वो पॉलिसी जो हमने बिजनेस चलाने के लिए हमने जो पॉलिसी फॉलो की है, जो प्रोसीड्यूर्स, जो प्रैक्टिसेस, उनको हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं, अपने डिस्क्लोज करने हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो कि जो फाइनेंशियल यूजर्स जो यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके काम में आ सके और वो दूसरे कंपनी के साथ इस हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको मिला सके, कंपेयर कर सके, एज वेल एज वो अंडरस्टैंड कर सके क्या उसका रीज़न है, व्हाट इज़ द बेसिस, कौन से बेसिस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुए हैं. ठीक है. So Accounting Standard 1 tells us about disclosure of accounting policies, right? The objective क्या है? What are the objectives of Accounting Standard 1? There are 4. Let's do one by one. The first objective is transparency. Transparency means to ensure transparency and consistency in the presentation of financial statements by requiring entities to disclose the significant accounting policies which they are following. The entities which they are following the accounting policies, they are following the methods, the practices they are following in their business, that they have to disclose in the financial statements along with the consistency. उसी को वो follow कर रहे हैं so that it can be compared with other years as well as with the other industries also. The transparency we get from the disclosure part. Second, comparability, to facilitate comparability between the financial statements of different entities by providing users with information about the accounting policies and principles and the methods applied. जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अगर हमें पता है कि ये financial statements इस entity ने ये principles and policies फॉलो किए हैं तो उसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो हम अगर दूसरा कंपनी वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ किए उसके साथ इसको कंपेयर कर सकेंगे. राइट. अगर दूसरा पॉलिसी अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसी यूज़ कर रहा है, अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा है, वो हमें पता नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन दैट केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंपेयर बिटवीन द कंपनी एंटिटीज एज वेल एज फ्रॉम दैट सेम कंपनीज बिटवीन 2 years. राइट. Then we have understanding to enhance users understanding the financial statements by disclosing the key accounting policies used in the preparation, including any departures from generally accepted accounting principles, that is GAAP. GAAP के हिसाब से अगर कोई भी डिपार्चर किया गया अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपरेशन, हमने अपने मेथड्स जो फॉलो किए, प्रिंसिपल्स जो फॉलो, उसमें हमने कोई अगर चेंज किए हैं मेथड्स, दैट ऑल्सो वी हैव टू मेंशन अलॉन्ग विद इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज विच वी आर यूज्ड इन द बिजनेस. ठीक है. डिसीजन मेकिंग टू असिस्ट यूजर्स सच एज इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई भी कंपनी में, तो उनको पता होना चाहिए कौन से पॉलिसी यूज़ किए इस बिजनेस ने जिसमें हमने इन्वेस्ट करने वाले हैं. ठीक है. क्रेडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेटर बेस्ड ऑन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसी बेसिस में हम डिसीजन ले सकते हैं ठीक से. सो डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है. देन अकाउंटेबिलिटी, इफ समवन इज अकाउंटेबल कि चलो अभी we have to account for the policies we are following in the business, so what will happen, the users will also feel हाँ ये जो एंटिटी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी वो यूज़ कर रहा है जिसमें वी कैन रिलाई ऑन देम, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड देम इन द financial statements will be reliable and relevant. Right. Let's see what they are saying. To promote accountability by requiring entities to disclose their accounting policies and any changes therein. Right. Thereby enabling stakeholders to assess the reliability and relevance of the financial information. The financial information पे उनका belief भी बढ़ेगा because they are relevant for the decision at hand as well as they can be relied upon. ठीक है.
Then these were the five or the objectives of the accounting standard 1. Then what are the importance of accounting standard 1? accounting standard 1 क्यों लाया गया? What is its importance? ठीक है, the importance of accounting standard 1 is, which is known as a disclosure accounting policy, lies in its role in enhancing the transparency, reliability and comparative financial statements between the same companies, different years, and also between entities in the same industry. Let's do one by one. Transparency, as we just read transparency ke, because we know, because of the disclosure of policies, accounting policy, significant policy, we know that the financial statements has been used using that policy by that concern, ठीक है, and we can also understand why what are the basis on which the financial statements are used, ठीक है. That is of transparency is one of the important. Second is consistency. By mandating the disclosure accounting policies, accounting standard 1 promotes consistency in financial reporting practices. Yes, consistently हम एक ही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ये AS1 हमें ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. वी हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड एंड इट कैन बी हैव मीनिंगफुल रीजन फॉर द डिफरेंट एंटिटीज comparing their financial statements. ठीक है, so consistency is the informed decision making, just we did in the objectives also. We are relying on the accurate and relevant information to make informed decisions. So in making users of financial statements such as investors, creditors and other stakeholders rely on accurate and relevant information to make informed decisions. So accounting standard 1 क्या करे, उनको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उस पर रिलायबिलिटी एंड एज वेल एज रेलिवेंसी रहता है बोल के स्टेक होल्डर्स कैन बिलीव एंड एसेस द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज वेरी मच did task by the financial institution, financial statements, ठीक है, by the different entities following them. Then change in accounting policy. अभी तक तो हम जो अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उसको हमें डिस्क्लोज करना था कंसिस्टेंटली. ठीक है, अभी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अब जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें अगर कोई चेंज लाए तो व्हाट विल बी आवर इफेक्ट. ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका क्या इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, दैट इज द मैटर हेयर टू बी स्टडीड. अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाई? बिकॉज व्हेन इट हैज़ अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन, financial performance और cash flows of the entity. yes, अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी जो हम इंस्टीट्यूट के एज पर इंस्टीट्यूट्स ICAI ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए हैं उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी. अब अकाउंटिंग पॉलिसी तो हम जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, अभी अगर चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी भी हुआ है सिग्निफिकेंट हो तो उसको भी हमें रिपोर्ट करने हैं, क्योंकि अगर उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट है जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का चेंज कर सकता है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस चेंज होता है या कैश फ्लो आइदर में भी उसका कैश फ्लो बढ़ रहा है या कम रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ पॉलिसी, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ द चेंज इन पॉलिसी इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट. According to accounting standard 5, क्या बोल रहे हैं, issued by the institute, net profits or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. Significant changes in accounting policy should be disclosed in the financial statements along with the effect on the current period's financial position. अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल रहे हैं, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इस पीरियड का प्रायर पीरियड आइटम से भी जो है जो अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, उसको हमें डिस्क्लोज करने हैं कि वो क्या इफेक्ट ला रहा है. साथ में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी उसका अकाउंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन या कैश फ्लो में कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैव टू बी ऑल्सो रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AS1 and also as per AS5. Here's a key regarding points. Let us do one by one. Accounting policy should be reported in financial statements. ठीक है, चेंज जब हुआ है क्या क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, चेंज ऑफ फाइनेंशियल जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज किए हैं बिजनेस में उसको क्यों हमें लाने हैं, रिपोर्ट करने हैं. तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें रखने हैं बातें में. First, materiality. The impact of the change is material. It should be disclosed in the financial statements. Materiality is determined based on the nature and magnitude of the change and its effect on the financial statements. For example, एक 1 rupee change may be material and even a 1 rupee change can not be material also. जो decision हमें लेने हैं उसके लिए अगर 1 rupee change के लिए भी हमारा effect आ रहा है हमारे decision taking में, then in that case it will that even 1 rupee is going to change the financial position performance. अब सोचिए 3 कंपनी
कंपनी में हमें चॉइस करने हैं। एक कंपनी का 54 रुपीज़ पर प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल, सेकंड कंपनी का 55, द थर्ड कंपनी 55.5। तो वी कैन से स्लाइट टू स्लाइट डिफरेंसेस, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ मेगा डिफरेंस इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अगर कोई एक मेथड उसी को फॉलो कर रहे थे, तो चेंज इन पॉलिसी अगर हमारा चेंज हो रहा है, अफेक्टिंग इट 1 रुपी इज ऑल्सो वाइटल फॉर अस, एंड अगर 1 लाख रुपीज़ में कोई मेटेरियल इफेक्ट नहीं ऑन द थिंग ऑफ रिलेशन, फाइनेंशियल पोजीशन को कुछ चेंज करने वाला नहीं है, इन दैट केस it is immaterial. ठीक है। Retrospective application, when a change in accounting policy is made, it should generally be applied retrospectively, meaning that the financial statements for prior period should be restated to reflect the new policy's impact. Last years में इस ईयर में इफ हमारा चेंज हुआ है, तो आगे साल में तो ये पॉलिसी नहीं था, राइट, वी वर फॉलोइंग सम डिफरेंट पॉलिसी, तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी उसके हमने स्टेटमेंट्स बनाए थे। लेकिन इसी साल में जो हमने चेंज किए, तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके लास्ट ईयर के चेंजेस को भी चेंज करने हैं, सो दैट क्या होगा, हम कंपेयर कर सकें लास्ट ईयर्स के फिनेंशियल्स के साथ इस साल के फिनेंशियल्स को। ओके, The adjustments required for retrospective application should be made through the opening balance of assets, liabilities and equity for the earliest period presented. तो पहला हम जब चेंज होने के बाद जो हम फर्स्ट पहले देंगे, फर्स्ट टाइम ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्ट्रे होगा, तब भी हमें वो एडजस्टमेंट्स करके लाने हैं, किसमें, द बैलेंस ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी फॉर द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ठीक है। Disclosure. The nature of the change in the accounting policy should be disclosed in the financial statements along with the reasons for the change. हमने चेंज क्यों किए, सिर्फ हमने जो चेंज किए वो तो हम डिस्क्लोज कर ही रहे, साथ में क्यों किए हैं वो चेंज उसको भी हमें देना है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू इफेक्ट ऑन द financial results of the business. This disclosure should be made in the notes of the financial statements and should be include quantitative information to help users understand the impact of the change. Yes, क्या बोल रहे, डिस्क्लोजर तो हमें करने ही है financial statements में, कहाँ करने, इन द नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे हम देते हैं नोट्स, उसमें हम मेंशन करने हैं, एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देना है। क्वालिटी तो हम दे रहे हैं, यहाँ से ये चेंज हुआ, ठीक है, बट क्वांटिटेटिवली उसका इफेक्ट क्या है हमारे इस साल के बिजनेस पे या कमिंग उसमें, उसको भी हमें देना है, सो दैट द यूजर्स कैन हैव अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वेरी नाइसली एंड understand the impact of the change, right? Transitional provisions. In some cases, transitional provisions may apply, allowing entities to apply the new accounting policy prospectively from the date of the change, rather than retrospectively restating prior periods. However, such a prospective application should be disclosed in the financial. ठीक है, कहीं कहीं किसी केस में, सब केस में हम बोल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रायर पीरियड्स के जो हमारे फिनेंशियल्स थे उनको हमें चेंज करने हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट जो हम पॉसिबल हम जो देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेंगे उसमें हमें लाने हैं एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज, एवरीथिंग। बट कुछ केसेस में हम देखें प्रोस्पेक्टिव, मतलब उसमें क्या, जैसे चेंज हो उसके बाद से चेंज लाना है, उस आगे में नहीं लाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें रिस्टेटिंग नहीं करने पड़ेगी प्रायर पीरियड आइटम्स को, वी ओनली हैव टू गिव एप्लीकेशन टू द थिंग्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी जहाँ पे काम में लगेगा, जहाँ पे चेंज हो उसके बाद से वो आएगा। ठीक है, इन सम केसेस, एंड दैट टू ऑल्सो हैव टू बी मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Overall changes in accounting policy should be reported in the financial statements when they have a material impact on the entity's financial statements, and appropriate disclosure should be made to enable users to understand the nature and effect of the change. इसको हम नोट में देंगे, accounting policies क्या change हुए हैं, that is qualitative information, कौन से policies कहाँ आया, and it should also stay whether it is retrospective effect or prospective effect, and that also quantitative information में हमें provide करने हैं, so that has to show the impact of the change in the accounting policy in the financial statements, right? Okay, what are the major considerations we have to take while taking into consideration disclosure of accounting policies, that is accounting standard 1. ठीक है, तो major considerations हम जो लेंगे यहाँ पे है prudence, substance over form and materiality. So हम always जानते हैं there are 3 major considerations. एक है prudence, let's see what is that. हमें क्या करना है, कोई भी कभी भी हम देख रहे हैं हमारे बिजनेस में एक बड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है, बट वी आर नॉट श्योर वेदर वो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में बता रहे वो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, सो वी विल नॉट टेक दैट प्रॉफिट इनटू आवर बिजनेस से ये. बट इफ़ वी आर स्लाइटली इन्फॉर्म्ड और या हमें लग रहा है कि एक लॉस हो सकता है, मे बी देयर इज अ चांस ऑफ अ स्लाइट लॉस और बिग लॉस, वॉट एवर इट इज, वी हैव टू प्रोवाइड फॉर इट.
ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रूडेंस सेइंग. सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. प्रूडेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉशन इन द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. राइट, हम जब भी कोई भी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स करेंगे, लायबिलिटीज करेंगे और कोई भी इनकम को एस्टिमेशन करना चाहते हैं या एक्सपेंसेस को, तब हमें कॉशन में आगे जाना है. इट सजेस्ट दैट अनसर्टेनिटीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉम्प्टली एंड लॉसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, while gain should not be recognized, only be recognized when realized. Yes, so what they are saying, अगर gain होने का chances है, even if it is 99%, until and unless we realize it, we will not show it. But if there is 1% probability that there is a chance of a loss or there is a expense increase, they have to provide for it, show it in the financials. AS1 encourages entitled to adopt prudent accounting policies to ensure that the financial statements reflect a conservative approach to reporting financial performance and position. Company का performance और position को ठीक से report कर सकेगा, as well as to keep the company in a better position when they are faced in the time of challenges. Then substance over form. Okay, the principle of substance over form emphasizes the importance of economic substance rather than just legal form in the financial reporting. ठीक है, it requires entities to consider the economic reality of transactions and events rather than merely their legal form. ठीक है, उनका क्या legal form है उसको नहीं देख के उसका क्या economic reality of the transaction का effect क्या है, that they have to see. They have to give importance to that. तो रियलिटी क्या है, इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू देन द लीगल फॉर्म ऑफ द transaction. AS1 encourages entities to adopt accounting policies that reflect the substance of transactions and events, ensuring that the financial statements provide a true and fair view of the entity's financial position and performance. इसका सिंपल से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने बोल रहे अभी ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या इकोनॉमिक effect of that transaction should be shown in the financial statements rather than the legal form. For example, आप ले रहे हो कि एक फॉर बहुत ही एक इजी सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जोमेटो में एक बंदा काम कर रहा है, तो व्हाट हैपन्स, उसने एक बाइक लिए, लीज में लिए, ठीक है, तो वो बाइक उसका नहीं है, ही हैज़ टेकन इट ऑन लीज. सो तो बाइक बिलोंग्स टू होम टू द लेजर, जिसका बाइक है उसका है, ठीक है, इसने लीज में लिया है इस बाइक को, मे बी हैज लीज फ्रॉम बैंक और वट एवर फ्रॉम द शॉप वी हैज बॉट इट, ठीक है, तो उसने लीज में लिया, तो वो बाइक उसको बिलोंग नहीं किया जब तक उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो इट डज नॉट बिलोंग टू हिम. तो लीगल फॉर्म क्या है, ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द व्हीकल, बट इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे अबाउट द ट्रांजैक्शन को, उस जोमेटो का वो बिजनेस कर रहा है, ही इज़ गेनिंग फ्रॉम दैट बाइक, ठीक है, वो बाइक को यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस में एंड ही इज़ अर्निंग फ्रॉम दैट, सो इट इज़ अ मोड ऑफ हिज अर्निंग. सो वी कैन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में वी कैन से इट इज़ द ओनर, ही इज़ द ओनर एक्चुअली, ही इज़ गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम इट, डिराइविंग बेनिफिट्स. सो अभी अगर कुछ भी लॉस होता है इस व्हीकल, तो ही हैज़ टू पे फॉर इट, राइट. एक्चुअली लीगल फॉर्म ही इज़ नॉट द ओनर, बट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वे के हिसाब से हम देखेंगे तो ही is enjoying the benefit of owning that bike. So here the substance over form should be given importance too. So in the financial statements, तो कि true and fair view express करे, show करे, he is to show the benefit he is getting from the bike in the financial positions of his business, ठीक है. So we can say substance over form should be given importance too, so that it can provide a true and fair view of the entity's financial position and performance. Then materiality, just I said materiality, it not only कि materiality does not differs how much the amount is, it differs कि वो यहाँ पे relevant कितना है, वो जो एक change हुआ है या एक जो disclosure हम कर रहे हैं उसका क्या importance यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. Let's see. Material refers to the significance of an item or event in influencing the decisions of the users of the financial statements. अब financial statements जो user use करे उनका decision में कितना उसका change होने वाला है, कि effect होने वाला है, उसी पर depend कर रहा है एक particular event का materiality होना या ना होना, ठीक है. AS1 recognizes that not all accounting policies and disclosures are of equal importance, and entities should exercise judgment in determining the materiality of the accounting policies and disclosures. Materiality considerations help entities prioritize their disclosures, focusing on information that is relevant and significant of the users of the financial statements. कोई particular disclosure accounting policy change किया गया, इसका कोई effect हुआ ही नहीं materially अगर देखोगे तो the users का इसमें decision में, so it is not material here. In that case, it is not required to disclose that policy. But अगर उसका एक भी रुपया का change भी अगर उसका is going to materially change the decision of the
होल बिजनेस और द फाइनेंशियल पोजीशन पूरा चेंज हो जाएगा, तो इन दैट केस इट हैज़ टू बी गिवन प्रायोरिटी. ठीक है, सो प्रायोरिटी शुड बी गिवन materiality to the materiality of the put case to case, and judgment should be applied by the entities in determining the materiality of the accounting policies and disclosures they should made in the financial statements, right, so that it is relevant and significant to the users of the financial statements. In summary, Accounting Standard 1 emphasizes the importance of prudence, substance over form and materiality in the formulation and disclosure of accounting policies. तो ये तीन major considerations रखने पड़ेंगे, prudence, substance over form and materiality in the formulation and disclosure of accounting policies. By considering these major considerations, entities can ensure that the financial statements provide relevant, reliable and transparent information to the users so that it helps in their decision making and a proper way of comparing with the other entities also. So what are the disclosure requirements? अभी requirements पढ़ते हैं, अभी तक हमने पढ़े क्या change, क्या effect होना चाहिए. What is the major considerations in disclosure of accounting policies? Let's see what are the disclosure requirements. Disclosure of accounting policies refers to the requirement of for entities to disclose in their financial statements the specific accounting principles, methods and procedures they have adopted in preparing and presenting their financial information. ठीक है, these disclosures are typically included in the notes to the financial statements and are intended to provide users with a clear understanding of how the financial statements were prepared and the basis for accounting for various transactions and events. Yes, कौन से basis में हर transaction and events को लिया गया है, financial statements में इसको depict किया गया है, that we can understand. और ये इसलिए इस कहाँ पे दिखाया जाता है, to the notes of the financial statements. ये इसी इंटेंशन में दिया जाता है तो कि जो यूजर्स है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया कि कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए गए हैं और कौन से बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर ट्रांजैक्शन के इवेंट को इफेक्ट दिया गया है, राइट. सो इट इज़ द principles, accounting methods, accounting procedures which have been adopted by the financial statement preparers to provide the and prepare the financial information to the users, right. Key components of disclosure of accounting policies. Nature of operation. A description of the entity's principal activities and any significant change in those activities during the reporting period. तो nature of operations, उनका operations का कैसा है उसको हमें disclose करने. अगर जो उसका principal activity था वो क्या चले आ रहा है उसमें कोई change आया है कि नहीं. That you have to during the reporting period में है ये. That is the nature of operations. Second है basis of preparation. A statement indicating the financial reporting framework used गैप में जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनल IFRS अलॉन्ग विथ एनी सिग्निफिकेंट डिपार्चर्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क. कोई भी अगर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन जो इंडिकेट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है उसमें कोई चेंजेस आया है कि नहीं और वो कुछ हटा है कि नहीं गैप से या IFRS से, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करने. Measurement basis. Disclosure of measurement basis used for items such as revenue recognition, expense recognition, asset valuation, method depreciation, even inventory valuation. All these things measurement basis अगर change हुआ है क्या follow हो क्या है उसको देना, अगर कुछ change हुआ है तो उसको भी mention करने, right. रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसीज क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विस और अदर सोर्सेज. एक्सपेंसेस रिकग्निशन पॉलिसीज क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रिकग्नाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट एंड एनी अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. जो बार बार रिकर नहीं हो रहा है वैसे खर्चे को एक्सपेंस में कौन से कैपिटल एक्सपेंस में जाएगी या रेवेन्यू एक्सपेंस में जाएगी वो हमें पता करना है, उसके बेसिस में वो हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करने. बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन. एप्लीकेबल डिस्क्लोजर ऑफ द क्राइटेरिया यूज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड अदर एंटिटीज. किसी भी एंटिटी को अगर ये ज़रूरत है तो उसको भी यहाँ पे लेंगे. क्यों कंसोलिडेशन क्या है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स यूज्ड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सच एज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड. तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड while preparing the disclosure for the financial statements, right. Depreciation and amortization policies. Explanation of the depreciation methods used for tangible assets and amortization methods used for intangible assets. Financial instruments. Disclosure of policies for recognizing and measuring financial instruments like
डेरिवेटिव्स, लोन्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर उस पर डीलिंग है उस कंपनी के एंटिटी के कंसेंस में, उसके बारे में हमें यहाँ पे देना है कौन से एंटिटी यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए, डेरिवेटिव्स है या लोन है या एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो हमें मेंशन करने हैं, राइट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट हमने लिए हैं जिसके बेसिस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करने। लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन। डिस्क्लोजर ऑफ की एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस हमने यूज किए हैं, एंड एस्टिमेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स एंड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो ये सब जो जितने बार हमें ये मेंशंस की, ये पॉइंट्स 10 पॉइंट हमने जो किए दैट वाज टू सी हाउ द कंसिडरेशंस ऑफ हमें कैसे इसको प्रोवाइड करने, व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर व्हाइल डिस्क्लोजर, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर AS1। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या चेंज हुआ है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर कुछ लास्ट ईयर से हमने इस साल में चेंज किया उसका क्या इफेक्ट होने वाला है हमारे बिजनेस पे इसी साल के, वो हमें देने हैं। सेकंड में कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम वन रिपोर्टिंग पीरियड टू अनदर अनलेस अ चेंज इज मेड विद अ वैलिड रीजन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। कोई भी अगर चेंज हुआ क्यों हुआ है उसको भी मेंशन करने और वैलिड रीजन यहाँ पे हमें देखना है क्यों हमने फॉलो नहीं किया, दूसरा चेंज किया है, ठीक है। Overall, disclosure of accounting policies is essential for providing users of financial statements with transparency and understanding of how financial information is prepared and presented by the entity. कैसे accounting स्टेटमेंट्स कैसे करके जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किए गए हैं और प्रेजेंट किए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको यूज़ करने कौन से बेसिस है, दैट हैव टू बी मेड यूज नोन टू द यूजर्स जो यूज़ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने डिसीजन लेने के लिए, राइट। इट हेल्प्स यूजर्स assess the reliability and relevance of the financial statements and make informed decisions based on the disclosed accounting policies and principles and methods used. And fundamental accounting assumptions, what are the fundamental accounting assumptions which we cannot leave, we can say these are the base of everything, ठीक है। तो what are the fundamental accounting assumptions, एक के बाद एक करेंगे। So fundamental accounting assumptions also known as accounting principles or concepts are the underlying principles that guide the preparation of financial statements. So क्या है, ये है going concern assumption। going concern assumption में हमने कोई भी बिजनेस चालू करना है तो हमें ऑलवेज माथे में रखना है कि ये बिजनेस हमारा फोर्सेबल फ्यूचर तक ऑपरेट करते रहेगा, इसका बंद होने का कोई चांसेस नहीं है। एंड एज वेल सिर्फ बंद करने का बात नहीं है, अपने बिजनेस का जो परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन उसको भी कमाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। दिस assumption, going concern assumption, presumes that the entity will continue to operate in the foreseeable future without the intention or necessity of liquidation और सिग्निफिकेंट इंटरप्शन टू इट्स ऑपरेशंस, ओके। कमाने का कोई चांसेस नहीं है, बंद होने का बिजनेस का कोई चांस नहीं है। इट अंडरलाइज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस दैट एसेट्स विल बी रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज विल बी सेटल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जितने हमने एसेट्स खरीदे, फिक्स एसेट खरीदे, तो दैट इज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी उसी के बेसिस में हम फिक्स एसेट्स बिजनेस में लाते हैं, लाइबिलिटीज जो हमारे देना होगा, बिकॉज वी नो द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इन द फोर्सेबल फ्यूचर और लिक्विडेशन होने के चांसेस नहीं है, नाइदर उनका स्केल डाउन करना है, ठीक है। सो गोइंग कंसर्न assumption was the first assumption. Then second is accrual basis assumption. Accrual basis assumption, under the accrual basis of accounting, revenues and expenses are recognized when they are earned or incurred regardless of when cash is received or paid. हमने कैसे कब पैसे दिए या कब हमें पैसा मिला वो यहाँ पे relevant नहीं है। यहाँ पे relevant क्या है, when the expenses are paid or when the expenses are received is not relevant है। यहाँ पे importance है which अकाउंटिंग पीरियड में ये अर्न करने में हेल्प किए रेवेन्यू को, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग वो पैसा मिला या नहीं मिला, तो हमने जो रेवेन्यू जनरेट किए, जो सेल्स हमारे हुए, उसके लिए जितने खर्चे हुए या जितना हमने इनकम आया, तो दैट इज व्हाट हैव टू कंसिडर हियर। सो अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड regardless of when it is received or paid. This assumption ensures that the financial statements reflect the economic substance of the transactions and events rather than just cash flows. कैश आया गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो कैश किस लिए आया था, इस जो साल के जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें इस कैश का इनफ्लो का रेलेवेंस है कि नहीं, या आउटफ्लो जो हुआ एक्सपेंस हो उसका यहाँ पे रेलेवेंस है कि नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाट है इंपॉर्टेंस, एक्रूअल बेसिस एग्जम्पशन। Third is consistency assumption. Consistent, same accounting policy, principle, method is being followed, right?
from one reporting year to the next reporting period. The consistency assumption requires entity to apply the same accounting policies and methods consistently from one reporting period to the another unless a change is justified and disclosed. अगर कोई change हुआ भी है उसको justify करना पड़े क्यों किया गया है change, and that has to be disclosed very nicely. Consistency enhances comparability and facilitates trend analysis in financial statements. Yes, consistency maintain होता है, mention होता है तो कोई भी business का comparable होता है, plus trend भी उसका analysis हम कर सकते हैं एक साल से दूसरे साल में. So we say that this three assumptions पे base है everything. ठीक है, first is the going concern assumption, second is accrual basis assumption, third is the consistency assumption. These fundamental accounting assumptions serve as a basis for preparing financial statements and interpreting the financial information. Adherence to these principles ensures that financial reporting is reliable, relevant and consistent. ठीक है, अगर हम तीनों हमारे जो एजम्पशंस है, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस से फॉलो करते हैं तो वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, रिलायबल होता है, रेलेवेंट होता है एंड कंसिस्टेंट, फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, so these are the three principles have to be, accounting assumptions have to be followed. So according to accounting standard 1, disclosed accounting policies, financial statements should be represented in a manner that provides users with clear and comprehensive information about the entity's financial performance and position. ठीक है, बिजनेस का क्या हाल है, क्या एंटिटी का पोजीशन है, परफॉर्मेंस क्या है, everything can be known from the accounting standard 1's disclosure of accounting policies. Here how financial statement should be represented as per AS1. as AS1 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 के हिसाब से डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी कैसा होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट. प्रेजेंट ऑल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड. उसको हमें प्रेजेंट करने जितने भी रेवेन्यू है, एक्सपेंस हुए, गेन्स हुए, लॉस हुए. ठीक है, क्लासीफाई आइटम्स बाय द नेचर और फंक्शन एज अप्रोप्रिएट. कौन से नेचर से इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कोई भी एक आइटम को, इवेंट को, अकॉर्डिंग टू द नेचर और फंक्शन. ठीक है, डिस्क्लोज एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली. कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जो एवरीडे बिजनेस में नहीं है तो उसको हमें डिस्क्लोज करने अलग से. शो द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एरर्स इफ एप्लीकेबल. अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स में चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट हमें दिखाने हैं, नॉट ओनली क्वालिटेटिवली ऑल्सो क्वांटिटेटिवली. ठीक है, इफ एप्लीकेबल, उस केस में अगर एप्लीकेबल है तो. देन बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, तो हमें हमने इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, अभी बैलेंस शीट कैसे होना चाहिए. प्रेजेंट ऑल द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एज ऑफ एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. बैलेंस शीट हम क्या बनाते हैं, एज एट 31st ऑफ मार्च बनाते हैं. तो एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड उसका कितना एसेट था, कितना लायबिलिटी था, कितना इक्विटी था, वो देने हैं. क्लासिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज करंट एंड नॉन करंट एंड प्रेजेंट देम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है, अभी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या, फिक्स एसेट्स आते हैं हमारे, हमें पता है एसेट साइड में फिक्स एसेट, करंट एसेट आते हैं, और एसेट में करंट लायबिलिटीज. ओके, एंड प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी के हिसाब से भी वैसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे, जितनी जल्दी लिक्विड होंगे. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा लिक्विड है, वी नो दैट. ठीक है, so including a note disclosing the accounting policies used in the valuation and presentation of the various items. और एक हमें नोट भी देने हैं हमारे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, रिप्रेजेंटिंग जो भी पॉलिसी हमने फॉलो की है इन द वैल्यूएशन प्रेजेंटेशन वेरियस आइटम्स. जो भी फिक्स एसेट आए हैं, जितने भी इन्वेंट्री, एवरीथिंग वी हैव टू मेजर देयर. ठीक है, आई मेंशन इन द नोट्स to the financial statements. Cash flow statement if applicable. अगर कोई बिजनेस है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे. प्रेजेंट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज. डिस्क्लोज एनी सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. अगर कोई भी सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोज करने. इंक्लूड अ रिकंसिलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में भी देने हैं, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में भी हमें मेंशन करने उसका क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का रिकंसिलेशन, एक कैश एंड कैश रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमें मेंशन करने हैं, राइट, बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड एज वेल एज द एंडिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. देन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में क्या क्या जाना चाहिए. प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल्स में जो भी हमने दिए उसके सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने, और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी एंड ईच एंड एवरी आइटम हैव टू बी गिवन इफ इट इज वी हैव इन्फॉर्मेशन एंड दैट हैज टू बी गिवन टू द नोट्स to provide informed decision to the users.
They disclose significant accounting policies adopted by the entity, include any change in policies during the reporting period. कोई भी जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो की है वहाँ पे मेंशन करने हैं, और अगर कोई चेंज किया गया है उसको भी वहाँ पे मेंशन करने हैं, और वो जो चेंज किया है उसका क्या क्वालिटेटिव इफेक्ट देने हैं, साथ में क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी मेंशन करने हैं, ठीक है. Including explanatory notes on specific items such as contingent liabilities, related party transactions and segment reporting. अगर कोई भी segment reporting है, right, उसके बारे हमें mention करने segment reporting क्यों हुआ है, पार्टी related party transactions का कोई transactions हुआ है तो उसको भी हमें mention करने in the notes to the parties, and contingent liabilities के बारे भी हमें वहाँ पे mention करने हैं, right. कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, अभी हमें कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने हैं. हाउ डू वी डू दैट? इंक्लूड कंपेरेटिव फिगर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास है मेनली हम 5 years to 8 years तक तो रखते हैं बिजनेस में, और 5 years तक हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, so that it can be compared with the previous years, okay, which is not unless it is impracticable. Disclose any changes in accounting policies and the impact on the financial statements. अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ जो किया गया है कोई भी ईयर में और उसका क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है. तो दिस इज वाई हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AS1, राइट. Comparative information include comparative figures from the previous reporting period for all financial statements unless impracticable, ठीक है. Disclose any changes in accounting policies and the impact on the financial statements, okay. Overall we can say financial statements prepared in accordance with AS1 should be presented in clear, consistent and informative manner, ठीक है. क्या होगा, उसको क्लियर होना है, कंसिस्टेंट होना है एंड इन्फॉर्मेटिव मैनर में होना है, सो दैट इट एनेबल्स अंडरस्टैंड द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, throughout the year and position as at the end of the year reporting period, and make informed decisions basing on the financial information provided by the financial statements of that entity. Proper disclosure of the accounting policies and other relevant information enhances the transparency and reliability of the financial statements, ठीक है. अभी प्रॉपर डिस्क्लोजर हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज कर रहे हैं उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ाता है, सो दैट द यूजर्स कैन टेक इन्फॉर्मेशन बेसिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड बाय द एंटिटी. So this was the disclosure of accounting policy, accounting standard 1, ठीक है, disclosure of accounting policies as per ICAI. Okay, so today we have done this accounting standard 1, and after that in the next session we will be doing MCQs based on AS1, and then we will start with AS2, right. Thank you, thanks for watching.